चीज़ें बनाने के लिए सेल्स का कितना उसमें रोल रहता है, क्योंकि सेल्स कहीं ना कहीं वो डिलीवर तो लीड जनरेशन के लिए ही किया जा रहा है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सेल्स एंड स्ट्रैटेजी गोज टुगेदर। अगर सेल्स नहीं होगी तो स्ट्रैटेजी का फायदा नहीं, अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो सेल्स नहीं चलेगी। चल हो गई। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स, और मैं हूं आपके साथ सोनाली, और आज मेरे साथ हैं डायरेक्टर सेल्स स्प्लेंडर से मिस्टर नवीन बग्गा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करती हूँ। जेपी, डीएलएफ, स्प्लेंडर, बहुत वास्ट जर्नी रही आपकी। एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं डिफरेंट ही रहा होगा, उसके बारे में बताइए पहले। देखिए, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2008 वेयर आई जॉइन जेपी। अच्छा। In fact, JP was growing at that time, and the biggest developer of Noida was JP. राइट। Let it be JP Greens Greater Noida, JP Wishtown in Sector 128 Noida, which was primarily a golf course development, all residential. So JP has done very well during that time, and the properties which they have developed, nowhere it can be compared. राइट। In fact, after JP, I moved to Shipra, again residential, which was primarily based out of Indrapuram. They have also developed huge townships like Shipra Sun City. Thereafter, I moved to commercial development, where I joined Corentham Group, primarily in Sector 62 Noida. They've developed commercials all over Delhi NCR, let it be Noida. They do have some residential projects in Gurgaon as well. Thereafter, I moved to DLF. I was in fact heading the entire leasing and sales of commercial properties in Delhi. अच्छा। So as DLF is primarily based out of Delhi and Gurgaon, Right. but most of their commercial properties which they sell is based out of Delhi. Let it be Shalimar Bagh or Saket, Jasola, as well as Mayur Vihar. So I was handling the entire leasing as well as sales of DLF commercial properties in Delhi. सर, आपने डीएलएफ में मतलब दिल्ली के लिए भी काम किया, आपने इंदिरापुरम सेक्टर की तरफ भी आप गए। कितना मार्केट में चेंज देखा है आपने? Definitely there's a change, especially between the audience of Indrapuram, which is Ghaziabad, to Delhi. Obviously, Delhi people have deeper pockets, so they can buy high value properties, and their inclination is also towards commercial as well. अच्छा। Because although it has been DLF, which is the biggest brand of India, Right. so they do prefer acquiring commercial properties, that to DLF, which is the known brand, because everybody wants a rental yield, Correct. which nobody better than a DLF could give. In fact, best of the malls of Delhi NCR is Mall of India, Ambience Mall, राइट। right? All primarily owned by DLF. Yeah, right. So definitely, first preference is DLF. सर, जब डीएलएफ की बात होती है, जो कैमेलियाज का नाम हम सुनते हैं, And उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? Camellias has been a landmark property of DLF. Camellias, Aralias. In fact, they are now developing a new project, Dahlias, दहलियाज। right? And which is again beyond 100 crores valuation. Right. So definitely, as DLF has delivered a good product, that's why there has been a demand of such projects, and that's why they've been demanding that good prices. राइट। However, nobody could imagine आप 100 150 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदोगे, करेक्ट। या तो कोठी या लैंड आ जाता है, बट वो अपार्टमेंट भी लोग खरीद रहे हैं, एंड दैट टू दे डू प्रोफाइल चेकिंग। नोबडी इज अलाउड टू बाय एन अपार्टमेंट, कोई ऐसे जाके नहीं ले सकता अनलेस देयर प्रोफाइल इज बीइंग सिलेक्टेड बाय डीएलएफ, तब जाके आप खरीद सकते हो, इररिस्पेक्टिव हाउएवर मनी यू हैव। अच्छा। So that's been the criteria. That's why they've been doing very well. सर, डीएलएफ इतना क्यों नामी है? मतलब डीएलएफ गुड़गांव बैरन लैंड था उस टाइम पे, तब डीएलएफ ने शुरुआत करी थी। आज भी डीएलएफ है, लेकिन मैम सिंगल थंब रूल है, यू जस्ट डिलीवर। अच्छा। जो कि बेसिक कॉमन सेंस थी, आपको सिर्फ जिस चीज के आप पैसे ले रहे हो आपको डिलीवर करना है। लोगों ने डिलीवर नहीं किया, इसलिए देव डिफॉल्टेड, बस। दे ऑफर अ सिंपल थंब रूल ऑफ डिलीवरिंग। ऑब्वियसली देन कम्स द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी देयर आफ्टर, बट फर्स्ट कम्स द डिलीवरी पार्ट, एंड देव डिलीवर्ड ओवर द डेकेड्स नाउ। सो एंड ब्रांड इज नॉट मेड विद इन अ डे, राइट। right? So it's been made over the decades now, so they've delivered it, that too with quality. That's why they're doing very well. सर, जैसे आपने बोला कि डीएलएफ ने डिलीवरी बहुत टाइम पे करी है और शानदार करी है, इसलिए लोग आज भी उसके फैन हैं। Exactly. लेकिन ब्रांडिंग की क्यों ज़रूरत है डीएलएफ को? आज भी उसका जहाँ पे भी देखिए पोस्टर्स दिख जाएंगे, ब्रांडिंग दिख जाती है जगह जगह, आईपीएल स्पॉन्सर कर देते हैं, ऐसा क्यों? ब्रांडिंग की ज़रूरत है? देखिए, ऑल्दो ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हाउ टू प्रमोट योर अपकमिंग प्रोडक्ट,
उसके लिए तो बताना तो पड़ेगा ही ना। करेक्ट, कि हम और भी तो ला रहे हैं। और भी तो ला रहे हैं कुछ, वो दे हैव नॉट एंडेड द बिजनेस, राइट, एंड दे आर एक्सपैंडिंग इवन टू टायर 2 and 3 cities they've been going, राइट। तो कैसे पता चलेगा DLF वहाँ आ रहा है, अनलेस यू नो। और प्लस देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांड रिकॉल। एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी वी डू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स व्हिच वी डोंट सी, तो उसके लिए ब्रांड रिकॉल तो चाहिए होता है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई नोएडा मार्केट की सर अगर बात करूं, नोएडा में बहुत डेवलपमेंट हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। आप इस मार्केट का हिस्सा रहे हैं, कोर बहुत अंदर से, आप कितना डेवलपमेंट देखते हैं प्राइजेस के तौर पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी, आपसे जानना चाहूँगी। majorly spent my career in Noida. I've seen it over the last 15-16 years. Noida there's a drastic change. There had been law and order situations previously, but with the current government, and that too, I have met many people, the businessmen, the actual people who work on ground, and especially जिनको law and order से फर्क पड़ता है. Although real estate is also directly or indirectly gets affected, but बाकी चीज़ों में भी effect होता है. Law and order has been very good, very conducive for the real estate. तभी आज की तारीख में people are going as far as Yamuna Expressway. राइट। यमुना एक्सप्रेसवे देयर इज नो रिहैबिलिटेशन एज ऑफ नाउ, कोई नहीं रहता है। आप यहाँ से फ्रॉम 0 पॉइंट विच इज जहाँ ग्रेटर नोएडा से आप शुरू होते हो, आप 50 किलोमीटर आगे तक चले जाओ, कुछ बहुत कम बसावट है, बट स्टिल पीपल प्रेफर बाइंग देयर, क्योंकि उनको पता है सेफ है। करेक्ट। पैसे हमारे कहीं नहीं जा रहे। प्लस अदर देन द फैक्ट रेराज एंड ऑल हैव कम अप, तो उसके लिए पीपल फील मोर सिक्योर। नाउ देयर इज अ बॉडी हु कुड एटलीस्ट गार्ड देयर मनी विच दे हैव गिवन टू अ बिल्डर। तो प्लस law and order has been very good, and no mention the fact the infrastructure of Noida has been the best amongst entire Delhi NCR. Right. You got the expressways, you got the service lane के बाद भी एक सर्विस लेन बना रखी है, 3 lanes हैं parallelly are running, especially on Noida expressway अगर आप बात करो, and obviously the factors like airport, defense parks, IT parks, Japanese cities, all coming on Yamuna expressway for that matter, right? So they've made paved the way for the best developments. सर अगर प्राइजेस की हाइक की बात करूँ तो कितना फ़र्क आया पिछले 5 सालों में? प्राइसेस तो जी हर जगह बढ़े हैं, स्पेशली द लैंड हैज़ मल्टीप्लाइड एंड इवन द रेजिडेंशियल हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। आप देख लीजिए जेपी के टाइम से 2008 की बात है, दे वर सेलिंग, दैट वाज द हाईएस्ट प्राइस, यूनिट एंग वाज सेलिंग एट 5000, जेपी वाज सेलिंग एट 6000। अच्छा। आज वही प्रॉपर्टी बिकती है 20,000 रुपये, रेजिडेंशियल की बात हो रही है, राइट? And they've been developers, good developers like M3Ms, the Godrej's, the Tatas. They've set a benchmark. They've got a good quality, very good locations, and that's why they're demanding a good price. आज max बिकता है 24,000 रुपये स्क्वायर फीट। करेक्ट। Godrej intends to launch it at 30,000 rupees a square foot. Imagine residential at 30,000 square feet. That's overwhelming. But the point is they've delivered it, and the location has been good, and the quality has been very good. राइट। Obviously, the brand value. ब्रांड वैल्यू। Yeah. सर इसको मेंटेन करने में ब्रांड वैल्यू को कितना खून पसीना लगता है? स्ट्रैटेजी से लेकर सेल्स से लेकर क्या क्या मायने रखती है? देखिए, ब्रांड बनाना आसान नहीं होता। आज की तारीख में, ऑल दो कमिंग फ्रॉम अ प्रीवियस क्वेश्चन यू सेड ब्रांडिंग की, एप्पल को भी ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? एप्पल के भी आप होर्डिंग्स देखोगे तो उनको तो जरूरत नहीं है, बट नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत पड़ती है शायद, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द ब्रांड वैल्यू, ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू टेक्स लॉट ऑफ टाइम and the money. Marketing is very expensive, let it be online as well as offline, it's pretty expensive, but that's need of the hour. And brand value तभी पता चलेगी जब लोग एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? जब उनको उसके बारे में अवेयरनेस होगी या वो यूज़ करेंगे। सो that's why brand value makes a lot of sense. सर एक ब्रांड की ऑफलाइन इमेज और ऑनलाइन इमेज दोनों को मेंटेन करके रखना मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। Exactly. और ये किस तरह से किया जाता है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप कुछ दे सकें। देखिए, ऑफलाइन इज प्राइमरली हाउ यू डिलीवर द प्रोडक्ट, ठीक है, राइट? लेट इट बी रेजिडेंशियल और द कमर्शियल। अगर आपकी डिलीवरी अच्छी होगी, आप अच्छा बनाते हो, और स्पेशली कमिंग बैक टू कमर्शियल, अगर आप अच्छा उसको रेंट पे चढ़ाते हो, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी इज समथिंग विच इज नॉट फॉर अ वन टाइम यूज। रेजिडेंशियल तो आप एक बार खरीद के छोड़ दिया, कमर्शियल को यू हैव टू मेंटेन इट, रन इट वेल, तभी चलेगी। नहीं तो आई नो इवन द कंपनीज लाइक DLF वर नॉट एबल टू डिलीवर एट टाइम्स वेयर दे हैव नॉट मेंटेन्ड दैट प्रोडक्ट, स्पेशली कमर्शियल, बिकॉज कमर्शियल में आप देखोगे मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। रेजिडेंशियल में तो 4-5 रुपये होती है जनरल, राइट? तो कमर्शियल में तो मेंटेनेंस ही मिनिमम 20 से 25 रुपये,
तो आप कैसे मैनेज करोगे? अगर आपका रेंट पे ही नहीं चढ़ेगा तो वो तो रन होगी नहीं, तो मेंटेनेंस तो जेब से जाएगी। राइट। सो देन यू आर इन अ बिग सूप, फिर आपके पैसे फंस जाते हैं। इसलिए जो बिल्डर, फॉर दैट मैटर, लेट इट बी DLF और एनी अदर डेवलपर, इफ दे रन दैट प्रॉपर्टी और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग इट, दैट ओनली सक्सेसफुल। अदरवाइज आप जो मर्जी कहानी है सब, कुछ नहीं चलेगा अगर आप उसको चलाओगे नहीं। सर नोएडा में आपको क्या लगता है कि कमर्शियल ज़्यादा बिकता है, रेजिडेंशियल ज़्यादा बिकता है, किसकी डिमांड ज़्यादा है? जनरल ट्रेंड हैज बीन रेजिडेंशियल, जो कि थंब रूल है, सबको घर चाहिए होता है। बट बियॉन्ड वन हाउस यू नीड अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल में नहीं आते बिकॉज रेंटल्स नहीं आते हैं, राइट। बिकॉज रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न इज नॉट मोर देन 1 to 2%। आप 2 करोड़ का घर ले लो, 20 मैक्सिमम 40,000 रुपये महीने का रेंट आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आता है। वेयर एज कमर्शियल आपको रेंटल यील्ड्स हैव बीन गुड, स्पेशली इन द एरियाज वेयर मेट्रो इज कनेक्टेड। अगर आपको मेट्रो वॉक इन डिस्टेंस पे है, then only the project would be successful, because then only the bigger companies would approach those projects for leasing. नहीं तो नहीं आएगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो कंपनीज नहीं आएंगी, तो रेंटल नहीं होगा और बिल्डिंग नहीं चलेगी। करेक्ट। और थोड़ा बहुत आप 10-20% अपने दम पे चला सकते हो, अगर लोकेशन अच्छी नहीं है या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी, आप जितना मर्जी लो। दैट्स द फैक्ट, यू कांट मैनिपुलेट द टेनेंट्स। राइट। तो वो नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत रहेगा। सर नोएडा में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट था अब लग्जरी लिविंग में धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कितनी डिमांड इसकी बढ़ी है लग्जरी लिविंग की पिछले कुछ सालों में? स्पेशली पोस्ट कोविड द डिमांड हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। आप देखिएगा लैंड के रेट्स 4 गुना हो चुके हैं। इसलिए नोएडा इज नो मोर अफोर्डेबल मार्केट। अफोर्डेबल के लिए ही लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। नोएडा इज नो मोर अफोर्डेबल। आपको एवरेज रेट ऑफ लैंड इज नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज अ स्क्वायर यार्ड। 2 लाख रुपए गज से नीचे आपको ज़मीन नहीं मिलेगी नोएडा में। राइट। तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल दीज डेज। और लग्जरी लिविंग के लिए सर पहले कहते थे गुड़गांव एक अपर मार्केट कहलाता था, नोएडा इज लग रहा है आपको कि अब टच कर जाएगा वो बेंचमार्क? देखिए गुड़गांव हैज़ बीन नॉट डेवलप्ड टुडे, इट हैज़ बीन डेवलप्ड सिंस इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट राइट। it had. Now Noida is coming up with the airport. So gradually, अभी नहीं है शायद मे बी गुड़गांव, बिकॉज ऑफ द मोर ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर देयर इन गुड़गांव, बट ग्रेजुअली नोएडा इज वे टुवर्ड्स दैट पॉइंट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय फार, आई वोंट टेक ऑल द डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ गुड़गांव, बट इज मच बेटर देन गुड़गांव और फॉर दैट मैटर दिल्ली। तो सबको वही चाहिए। आप देखिएगा 50 एकड़ में कैंपस आ रहा है TCS का इन सेक्टर 153। अच्छा। In fact, sector 86 is already coming up with the campus of Infosys, right? And 145 में Microsoft आ रहा है 15 acres में। तो ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं just because infrastructure has been good, and plus for investors this is the growing market where you need to put your money. राइट। अब वो जो 100 करोड़ का अपार्टमेंट that's for an end use, it's not an investment. करेक्ट। राइट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, द ग्रोइंग मार्केट इज नोएडा विच इज प्राइमरली द एक्सप्रेसवे एंड द यमुना एक्सप्रेसवे फॉर द अफोर्डेबल वंस। स्प्लेंडर के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ सर, क्या क्या स्प्लेंडर लेके आ रहा है नेक्स्ट? देखिए स्प्लेंडर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। स्टार्टिंग फ्रॉम गुड़गांव वी हैव 4 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव, जिसको हम 100% लीज्ड है। इनफैक्ट वन ऑफ आवर बिल्डिंग हैज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज आर मेन टेनेंट, और रिलायंस का पूरी बिल्डिंग हैज़ गॉन टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका नॉर्थ का हेड ऑफिस है। अच्छा। Other than Gurgaon, we are developing an 18 acres residential complex in Panipat. First phase has been delivered. अच्छा। Second is will be launched shortly. ओके। Other than that, we have 150 acres of residential land in Amritsar, bang opposite airport, and we are in the process of acquiring about 50 to 100 acres more in Amritsar, and that's been doing pretty well. That's primarily a plotted development, and currently we are also doing the Noida project, which is in sector 142. It's an ITITS land, 10 acres, and it's a 3-side open plot. अच्छा। You won't find a 3-side open plot anywhere, I guess. Residential? Not in my knowledge. It's a commercial. अच्छा, it's commercial. ITITS commercial. नोएडा में मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई 3-side open ITITS प्लॉट, प्लस विद द कनेक्टिविटी बताया ऑफ सर मेट्रो। सेक्टर 142 नोएडा। 142 में। अच्छा सर, आपने अभी अमृतसर की भी बात करी, आप पटियाला से हैं? मैं पटियाला से। अच्छा, ये जो आपका जो स्विच था, जब पटियाला से आप जब दिल्ली या नोएडा शिफ्ट हुए थे, एक पटियाला एक छोटा शहर माना जाता है यहाँ के कंपैरेटिवली, जब आप वहाँ से यहाँ आए और ये सारी जो दुनिया देखी और सब समझना पढ़ना उसके हिसाब से ये काम करना, वो एक एक्सपीरियंस पर्सनल आपका मैं जानना चाहूँगी। देखिए primarily shifting from Patiala to Delhi was very simple, more opportunities in Delhi NCR,
And going to real estate especially was simple logic. The bigger the product, राइट. more are the chances of growth or more are the margins. तो घर से बड़ा प्रोडक्ट तो जिंदगी में सबको नहीं घर चाहिए. है, और चाहिए भी सबको, हाँ. राइट. तो उससे बड़ा प्रोडक्ट तो नहीं होगा, करेक्ट. तो उससे बढ़िया मार्जिन भी नहीं होगा, उससे बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं होगा. Simple. सर लेकिन जब मुझे लगता है आपने जब शिफ्ट किया था तब रियल एस्टेट को इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं माना जाता था. अब जो रियल एस्टेट का जो वैल्यू है मार्केट में, रियल एस्टेट एक टाइम था कि लोग चलो ठीक है रियल एस्टेट में, लेकिन आज का टाइम जो रियल एस्टेट इज़ बूमिंग. आगे आने वाले 10 साल कहा जाता है कि पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा रियल एस्टेट की जो मार्केट है, बहुत ऊपर जाने वाली है. वो जब ये एक स्विच किया जब अपनी लाइफ में, तब आपके लिए इट वॉज ईजी. बट आपने जैसे आपके माइंड में बहुत क्लियर था, ये बहुत लोगों के दिमाग में नहीं होता है. लेकिन नहीं, आई वाज क्लियर फ्रॉम डे वन. आई बात कम ये है. फ्रॉम पंजाब, वहाँ पे तो लैंड होल्डिंग्स आर ह्यूज. राइट. पीपल लव लैंड. हालांकि सब जगह पसंद है लोगों को, और ज़मीन ऐसी चीज़ है जो कमी हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है. तो जिस चीज़ की स्कैसिटी होगी वो डिमांड में तो हमेशा रहेगी. राइट. राइट. अब बिल्डिंग एक के ऊपर 4 फ्लोर और बना सकते हो, ज़मीन नहीं मल्टीप्लाई. ज़मीन उतनी ही है. ज़मीन तो उतनी. So that was the only logic to coming into real estate, and obviously it's a high paying sector, and real estate is something which is common across the world. आप कहीं भी चले जाओ, रियल एस्टेट हर जगह बूम्स. है. ठीक है, एट टाइम स्टैग्नेट कर सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई और गवर्नमेंट नॉर्म्स और लैक ऑफ डेवलपमेंट, बट अदर स्टिल वो एक साइकिल है, 2-4-5 साल फिर घूम के आ जाएगा. बट रियल एस्टेट नेवर एंड्स. राइट. और आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बट इंडिया में देयर इज अ ह्यूज फैसिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड गोल्ड. हाँ, गोल्ड का भी सही में. राइट. गोल्ड का भी है. तो फैसिनेशन है. तो आप चाहे अफोर्ड ना कर पाओ, बट आपको अपने घर में रहना, किराए के घर में नहीं रहना है. चाहता. सही बात कहता है यार किसके घर में कौन काम करेगा, अपने घर में कराएंगे. चाहे आदमी कम पूरी करेंगे. जिंदगी जीता है इसलिए कि अपना घर कर एक घर बना ले. करेक्ट. तो वो तो फिर नीड ऑफ द आवर. सर चैलेंजेस इस दौरान कितने आए आपको? चैलेंजेस की बात करें. देखिए, नो सक्सेस कम्स विदाउट चैलेंजेस. We faced the times when, especially start with JP, where we gave offers, बिकता नहीं था. फिर ऐसा टाइम आया, there was a project named JP Aman, 3300 flats थे, we got 7000 checks. अच्छा. For that same, और उस टाइम ड्रॉ निकालना पड़ा था 2008 में. Imagine that was the situation. तो इसी वजह से वो तो हर चीज़ में प्रोडक्ट में साइकिल होता है, लेट इट बी रियल एस्टेट और एनी अदर थिंग. कभी अप्स हैं बट डाउन है, बट रियल एस्टेट में जब आप आता ना तो यू मेक मोस्ट ऑफ इट. तो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड आप सारा वो कवर अप कर भूल लेते जाते हो उस हो. टाइम. तो दैट्स व्हाई. सर आप सेल्स बैकग्राउंड से रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कहानी सुनाना कितना ज़रूरी है सामने वाले को कन्विंस करने के लिए? Everything needs a story. Every product, from let it be from smallest thing like a pin to an iPhone to a plane and to a property, there has been a story. बिना story के तो कोई चीज़ बिकती नहीं है. Plus story telling adds to what are the merits demerits of the product. Plus आपको उसको पोजीशन कैसे कर रहे हो. आपकी स्टोरी डिफाइन करती है आप प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करोगे. Although it is very important to have a story, but end of the day deliverability of that product अगर मैच नहीं कर रही है वो स्टोरी टेलिंग का फायदा सुना नहीं दी है. बस. हाँ, सिर्फ कहानी सुना दी, अगर डिलीवर नहीं किया वो स्टोरी फिर बैकफायर भी कर जाती है. तो इट हैज़ टू मैच. आज के तक में पीपल हैव बीन वेल अवेयर. आप कुछ भी एक सुई भी ढूंढनी है, आप गूगल पे टाइप करो, सब मिलता है. तो एनीथिंग लाइक अ प्लेन और व्हाटएवर, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन, लेट इट बी सिमिलर द केस ऑफ द डेवलपर और द लोकेशन. आप गूगल पे टाइप करो, आपको लोकेशन मिल जाएगी, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, या बिल्डर की बैकग्राउंड मिल जाती है. सो स्टोरी टेलिंग डज ऐड टू इट इफ दे आर मैचिंग विद ईच अदर डिलीवरेबल्स. तो अगर इफ दे आर मैचिंग, सो प्रोडक्ट इज अ सक्सेस. सो जैसे आप सेल्स देखते हैं, आज के टाइम में बायर्स 50+ भी हैं, बट मिलेनियल्स का भी ज़माना आ चुका है. दे आर ऑल्सो बिकमिंग द बायर्स नाउ डेज. ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी या पिचिंग स्ट्रैटेजी में उनको कस्टमर्स के कितना आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है दोनों टाइप के कस्टमर्स के लिए? देखिए, प्राइमरली डिफरेंस बिटवीन द न्यू जनरेशन इज दे आर मोर रिस्क टेकिंग. अच्छा. हाँ. वो ले लेते हैं रिस्क. तो लेट्स से दे आर अर्निंग 3 लाख रुपीस, एक घर लेगा, फिर सोचेगा यार एक कमर्शियल भी ले लेता हूँ, बिकॉज एक रेंटल इनकम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैव बीन प्राइवेट. सबको एक सेफ्टी चाहिए, स्पेशली पोस्ट कोविड एवरीबडी हैज सीन बहुतों की जॉब्स गई हैं. एंड इफ यू डोंट हैव अ बैकअप इन टर्म्स ऑफ इनकम, लेट इट बी द सैलरी, बट सैलरी से घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. खर्चे आजकल एक्सपेंसेस आर ह्यूज, राइट. सो डेफिनेटली दे लुक फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. लोन तो लेना ही पड़ता है एट टाइम्स, राइट. बट अगेन बिकॉज प्रॉपर्टी हैज़ बीन गोइंग फिनोमिनली, तो वो इट वुड गिव देम द रिटर्न्स एंड ऑल्सो द बैकअप इन टर्म्स ऑफ
एनी इमरजेंसी। तो प्लस आज की तारीख में नथिंग लाइक अ प्रॉपर्टी गेट्स अ रेंटल, इन एडिशन टू इट इट अप्रिशिएट्स एज वेल। तो आप अगर 5 साल का साइकिल जनरल लेके चलो, इट गिव्स यू गुड अप्रिसिएशन एज वेल एज अगर आप बेचते भी हो, आपको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दे जाती है वो। सर अगर जैसे मिलेनियल्स हैं, अगर उनको अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे या कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो उनको कनेक्ट करें या जिसके लिए वो कन्विंस हो जाएंगे? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज सेफ्टी। Safety of the money they invest, number one. Second is quality of the product we deliver. And third is, if it is a commercial property, rented. It will be rented. If not right now, because if it is under construction, in future they must be shown the path where अगर लोकेशन अच्छी है तो वो रेंट पे चढ़ जाएगी। बिकॉज अगर रेंट पे नहीं चढ़ेगी वो आपका इन्वेस्टर खराब होता है एंड प्लस आपका प्रोडक्ट फंस जाता है। वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास एंड टू एंड साइकिल है तो लेट इट बी द मिलेनियल्स और एनीबडी अबव 50, एवरीबडी इज गुड टू गो। बिकॉज सबके दिमाग में आ गया है एक प्रॉपर्टी से कुछ नहीं बनेगा, और बैंक में रख के पैसे ग्रो नहीं करते नहीं होते, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर जैसे आप बोल रहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से इसलिए ऐसा बोल रहे हैं या वाकई करना चाहिए? फॉरगेट द फैक्ट दैट आई एम इनटू रियल एस्टेट। ठीक है। I do have lot of people around me, सारे मेजरली IT बैकग्राउंड एंड थोड़ा बहुत डॉक्टर्स हैं। जब एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो क्या करेंगे? कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितनी शॉपिंग करेंगे, पैसे का क्या करेंगे? रियल एस्टेट में ही जाएगा। ठीक है। प्लस इन एडिशन टू इट, हाउ वुड दे सिक्योर द फ्यूचर ऑफ देयर फ्यूचर जनरेशंस और द चिल्ड्रन? एफडी से तो नहीं हो रहा। 7% या 8% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, नथिंग प्रेडिक्टेबल। वो थंब रूल से जमीन में पैसे डालो, जमीन देखी जाएगी लेके नहीं जाएगी। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस पुराने नहीं। जो हमारे कहे हाँ जो है, तो यू नीड टू स्टिल फॉलो दैट थंब रूल। Yeah. जमीन ले लो, ठीक है, इट मे स्टेगनेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ग्रोथ नहीं होगी, हाँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन पैसा नहीं डूबेगा। वो कोविड के बाद तो सर मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए हुआ है बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड कि पैसे बचा के कुछ नहीं हो रहा, पैसे स्पेंड भी करने चाहिए, और अब क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा। राइट। स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो, पीपल स्टेइंग, स्पेशली अगर आप नोएडा मार्केट की बात करो, तो नोएडा मार्केट को बेनिफिट मिला फ्रॉम द पीपल स्टेइंग यमुना पार वाले लोग। दिल्ली इज वेरी कंजेस्टेड, वहाँ तो आपको गाड़ी तो ले जा ही नहीं सकते अंदर। तो दे वांट टू, स्पेशली दे सीन ड्यूरिंग कोविड, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, इतने लोग होंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज बट ऑब्वियसली नहीं होंगी। राइट। शमशान घाट में जगह नहीं थी, एवरीबॉडी हैज सीन द वीडियोज ऑन टीवी, राइट। तो देव रियलाइज कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर होगी, अपना एनवायरनमेंट पहले बेटर करोगे। और एनवायरनमेंट बेटर करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, नंबर 1, गुड स्पेस फॉर लिविंग, एंड ऑब्वियसली गुड फूड एंड ऑल कम्स आफ्टर इट। तो दे प्रेफर चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट नाउ। वो अब गलियों में नहीं रहते। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी एवरेज 25-30 करोड़ की बिक जाती है। हाँ। उससे वो 4 प्रॉपर्टीज और खरीद लेते, एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे, 3-4 कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, तो उनकी रिटर्न भी आ रही है। ठीक है। एंड प्लस उनके पास एक बड़ा घर भी है वेयर दे आर लिविंग लैविशली, क्वालिटी लाइफ है। सो दैट्स व्हाई हो, चाहे प्राइजेस के हिसाब से हो, शिफ्टिंग के हिसाब से हो, जो ट्रेंड्स भी बदले हैं काफ़ी मार्केट में, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज भी लोगों ने बदली है, कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग को उस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाए। सेल्स में भी इमोशनली कनेक्ट करना लोगों को ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी प्रॉपर्टी लेता है ना, उसका इमोशनल कनेक्ट आता है। इट्स ऑल्दो अगर लैंड भी नहीं ले रहा, कोई कमर्शियल भी ले रहा है, स्टिल इट्स अ पीस ऑफ समथिंग फिजिकल विच ही कैन यूज इट। तो जो चीज़ वो यूज़ कर सकता है उसके साथ इमोशनल कनेक्ट होगा। ऑब्वियसली देयर इज अ मनी अटैच्ड टू इट, जहाँ पे उसके हार्ड अर्न मनी है तो उसका कनेक्ट लेना बनता ही है, राइट। बट स्टिल इतना पैसा आज की कल कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल फॉर दैट मैटर कोई सस्ता नहीं आता। 1.5-2 करोड़ से कम कुछ नहीं आ रहा है, राइट। अगर वो इतना पैसा लगा भी रहा है तो सोच समझ के लगा रहा है। प्लस इट्स नॉट द इंडिविजुअल विच इज कनेक्टेड of making the decision of buying that property. It's the family that is connected. Right. सबके इमोशंस, वाइफ, बच्चे, जनरली सजेशंस ली जाते हैं कि बेटा मैं ये ले रहा हूँ, या वाइफ से पूछा जाता है कि क्या हम ये ले लें प्रॉपर्टी, या तो उनके सजेशन लिए जाते हैं। गाड़ी से भी एक इमोशन होता है, पूरा परिवार मिलकर। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप पूरा परिवार जाता है ना, रिसीव करता है, उसकी की लेता है, तो घर तो why बड़ी not चीज़ हो property गई। और why not house, तो
सर जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, आज का ज़माना आ गया, हम सब फ़ोन पे ही रहते हैं परमानेंट, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डाइवर्ट होकर डिजिटली हो गई हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जो था पहले रियल एस्टेट में वो अभी भी कायम है। बिल्कुल तो है, अच्छी चीज़ होगी तो आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होगा, और आप फॉर मैटर वाइस वर्सा भी है, बट वर्ड ऑफ माउथ डज मैटर, स्पेशली इट डज मैटर फॉर द पीपल हु आर नॉन रियल एस्टेट। अच्छा, जो नया बंदा होता है ना, देर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव डिफॉल्टेड, द डेवलपर्स इन डिलीवरिंग एंड ऑल, तो कुछ लोग तो फंसे भी होंगे या डरे भी होंगे दूसरों की कहानियां सुन के। सो ऑब्वियसली दे डू टेक सजेशंस फ्रॉम द नियर एंड डियर वंस, और किसी का अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है जनरली पीपल टेंड टू शेयर, और उससे पीपल डू गेट इन्फ्लुएंस। हाँ हाँ, क्योंकि इट्स बेटर, देखो वट एवर बिल्डर इज अ थर्ड पार्टी टू एन इन्वेस्टर, सॉरी, सो उनके लिए प्रॉब्ली उनको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज मार्केट में बहुत बिल्डर्स हैं, राइट, बट जहाँ से रेफरेंस आता है, अगर कोई आपका नियर एंड डियर वन देता है, कभी गलत गाइड नहीं करेगा, स्पेशली जो अगर खुद यूज कर चुका है, नथिंग लाइक दैट। हाँ, सेम बिल्डर से है, सेम डेवलपर तभी आप देखोगे ना ऑनलाइन लोग इंक्वायर करते हैं, देयर आर रिव्यूज टू इट। फॉर दैट मैटर आप किसी प्रॉपर्टी में ट्रैवल भी करते हो ना, होटल में रहते हो, यू सी द रिव्यूज, तो दोज डू ऑल्सो एड ऑन, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल है, बट अगेन रेफरेंस डू काउंट। और कस्टमर फीडबैक सर, वो मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। अगर आपका एक भी कस्टमर खराब है, आज की तारीख में देयर आर लॉट मैनी फोरम्स वेयर अगर आपका एक्सपीरियंस खराब है, आप रिव्यू डाल सकते हो रिगार्डिंग द बिल्डर और इवन स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट एज वेल। तो पीपल डू एक्सप्लोर और गो ऑनलाइन टू चेक द रिव्यूज, बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है, लोकेशन तो चलो दिख जाती है, बट दे डू चेक बिल्डर बैकग्राउंड, स्पेशली इफ द बिल्डर इज न्यू इन द मार्केट। तो जैसे आप अभी ब्रांड्स के बारे में बता रहे थे, डिफॉल्टर्स के बारे में बात हो रही थी सर, एक टाइम ऐसा होता था बड़े बड़े ब्रांड्स थे, हमने देखे, मतलब मैं बड़ी हुई उनको सुनते हुए उनका नाम, लेकिन आज के टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं करते, मार्केट से गायब है वो, ऐसा भी क्यों? I will prefer not taking the names, but for the simple reason they have not delivered it. और अगर डिलीवरी की भी है तो इतनी पुअर क्वालिटी की है कि किसने दोबारा उसको प्रेफर नहीं किया, स्पेशली फ्रॉम दैट योर पॉइंट की वर्ड ऑफ माउथ। अगर वर्ड ऑफ माउथ खराब गया तो कोई दोबारा रिस्क नहीं लेगा, किसने एक बुरा बोल दिया, और अगर कहीं से गलती से दूसरे ने भी बुरा बोल दिया तो पक्का नहीं जा रहा हो, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो इतनी स्टेक पे नहीं डालता कोई अपनी इन्वेस्टमेंट। सर नोएडा की बात करें तो कितना पोटेंशियल आप देखते हैं नोएडा मार्केट में आज के टाइम में? Coming back to Noida, Noida has the biggest potential these days because first thing, there's a very good infrastructure development in Noida. There are express highways बने हुए हैं, electricity infrastructure बहुत अच्छा है, water supply की इशू नहीं है. In fact now Ganga water is coming to Noida and Greater Noida. Greater Noida में तो आ चुका है, right? तो infrastructure has been good. Plus there are companies who are coming to Noida now. They are leaving their offices in Gurgaon. एज वेल एज दिल्ली में तो वैसे ही जगह नहीं है, ऑल्दो द रेंटल्स आर टू हाई, ठीक है, तो इसी वजह से वो नोएडा आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज कंपनीज पीपल आर माइग्रेटिंग टू नोएडा, सो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ नोएडा इज द मैक्सिमम दीज डेज। सो जब किसी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे स्प्लेंडर को ही ले लीजिए, उसके भी अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे आप बता रहे हैं, एक प्रीतमपुरा बोला आपने, गुड़गांव, अलग अलग जगह पे, अमृतसर में इसका एक प्रोजेक्ट है, हर ब्रांड का मैसेज सेम होता है, मैसेज सेम है, विजन क्लियर है, एग्जैक्टली, लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी ब्रांडिंग के लिए अलग रहती है कि इसको इस तरह से प्रमोट करना है या इसके लिए हमें ये चीज़ पुश करनी है। वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सेल्स का कितना उसमें रोल रहता है, क्योंकि सेल्स कहीं ना कहीं वो डिलीवर तो लीड जनरेशन के लिए ही किया जा रहा है। एग्जैक्टली, देखिए एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सेल्स एंड स्ट्रैटेजी गोज टुगेदर, अगर सेल्स नहीं होगी तो स्ट्रैटेजी का फायदा नहीं, अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो सेल्स नहीं चलेगी, राइट, सो इट इज इंटरलिंक्ड। बट कमिंग बैक, बिल्डर जब स्पेशली फॉर स्प्लेंडर, नोएडा मार्केट हैज बीन न्यू, प्राइमरली द फैक्ट वाज स्प्लेंडर हैड द फर्स्ट थिंग विच स्प्लेंडर हैड एन एज वाज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इससे बढ़िया लोकेशन ही नहीं है आज के डेट में पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे, वेल कनेक्टेड टू मेट्रो, अ 3-side ओपन प्लॉट एंड walking distance from all the residential areas. Right. Sector 137 has been the primarily residential area, Right. more dense on expressway, so it's a walking distance, just a road across. Correct. Second thing, the next strategy was the leasing part. Splendor की USP यही रही है, जितना भी commercial बनाया है, starting from a corporate office in Jasola and our 3 delivered projects in Gurgaon, and one is about to get delivered by another 6 odd months. लीजिंग, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स 100% लीज्ड है। अच्छा, तो अगर आप डिलीवर करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उनको लीज नहीं करा पाओगे,
और एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर लीजिंग नहीं होगी तो वो खून के आंसू रोएंगे इन्वेस्टर्स, बिकॉज वो मेंटेनेंस 20 रुपये ना जेब से जाएगी. करेक्ट. दैट्स अ बिग पेन. सर एनआरआई की मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे नोएडा में बढ़ी है? फॉर दैट मैटर, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़, कल की न्यूज़ देखिएगा, विद सम पॉलिसीज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, देयर आर चांसेस दैट स्पेशली जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होने वाले थे यूएस में, दे में स्टार्ट इन्वेस्टिंग बैक टू इंडिया. अलग बात है, वी डू कीप ऑन गेटिंग इन्वेस्टर्स. देखिए, इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ कहीं नहीं है आज की तारीख में. एंड इनफैक्ट ग्लोबली ऑल्सो इंडिया में वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी दिस ईयर. अच्छा. ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर में था, राइट. एंड सो वो तो जेनरिक चीज़ है, बट the returns which property has given in last couple of years, it's highest. हम अदर कंट्री से तो कंपेयर कर ही नहीं रहे. विद इन इंडिया इट इज़ द हाइएस्ट. तो वाई नॉट द एनआरआईज में गेट द बेनिफिट ऑफ इट. तो सर हमारे यहाँ के लोग दुबई में जाके क्यों इन्वेस्ट करते हैं? देखो, शौक की कोई कीमत नहीं होती है, बट दुबई मार्केट हैज़ बिन गुड. आज के डेट में सारे यार दुबई घूम के आ चुके हैं. द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ नहीं है. कोई प्रॉपर्टी आज आप खरीदते हो, लेट से 2 करोड़ रुपए में कोई विला या कुछ खरीदते हो, विला नहीं आता, चलो कोई फ्लैट खरीदते हो, गवर्नमेंट वहाँ क्या करते हैं, थोड़े दिनों बाद उसके साथ के एडजेसेंट लैंड में एक नई डेवलपमेंट ले आती है, तो वो प्रॉपर्टी ग्रो ही नहीं हुई. अच्छा. ग्रोथ तब होगी जब देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ समथिंग, तभी तो ग्रोथ आएगी. करेक्ट. वो स्कैसिटी होने नहीं देते. एक चीज आपने खरीदी, साल बाद उसके एडजेसेंट एक नया लैंड पैच लॉन्च हो जाएगा, उसमें नया प्रोजेक्ट आ रहा होगा, तो उसकी भी हुई प्राइस, तो वो कैसे ग्रो होगी? राइट. उसकी शॉर्टेज हुई नहीं, तभी तो ग्रोथ हुई नहीं. इसलिए इट्स गुड फॉर लिविंग, बट इट्स दुबई's मार्केट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टिंग. अच्छा. बिकॉज प्रॉपर्टी इज नॉट ग्रोइंग. द रेंटल्स कैन कम, बट सॉरी, अगेन द सप्लाई हैज बीन ह्यूज. आज के टाइम में इतना रेजिडेंशियल आ रहा है. दुबई के सबर्ब्स में आप चले जाओ, इनफैक्ट दुबई शारजा रोड पे है, दुबई अबू धाबी रोड पे डेवलपमेंट आ रहा है, विच इज एटलीस्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम मेन सिटी दुबई. राइट. बट वो सस्ता है तो लोग ले लेते हैं कि बजट में आ रहा है, बट पॉइंट इज वो ग्रोथ तो होगी नहीं परमानेंटली, तो आपको रहना नहीं है. बट प्लीज रिमेंबर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इज मच हायर देन व्हाट यू पे इन इंडिया. डाउनटाउन इज मोर, आई थिंक, प्रोग्रेसिव ना? या इट्स मोर प्रोग्रेसिव, बट वो पुराना है ना, पुराना बसा हुआ है. राइट. जो नया डेवलप हो रहा है तो वो उसको तो इट वुड टेक टाइम. वही चीज़ हो गई कि मतलब जो अब वो बस चुका है, तो इसकी वजह से उनके रेट्स अब नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि हम शारजा और हर जगह पे उधर आ रही सेम चीज़ें आ रही हैं. तो मतलब कहता वहाँ पे देयर इज द रोड मैनेजमेंट हैज बीन वेरी गुड. तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिस्टेंसेस कवर करने में. तो कहता मैं 15 मिनट और ड्राइव कर लूँगा, आई गेट अ प्रॉपर्टी एट हाफ अ रेट. करेक्ट. हार्डली मैटर्स. वो भी दुबई में. वो भी तो सर नोएडा के रेंटल मार्केट को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अर्लियर नोएडा रेंटल मार्केट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड, बट विद lot of brands coming, so market has been growing like anything. Plus you are builders have been delivering a quality product. To start with, आप देखिएगा जब एक्सप्रेस में एंटर करते there is a Skymark building, right? You got the Paytm office and all been there. नेटवर्क ATM. ठीक है. तो सारे अच्छे, वहाँ पे ऑडी का भी शोरूम है, वहाँ पे हल्दीराम भी है, राइट, स्टारबक्स भी है, आपको सब मिलेगा, टिम हॉर्टन्स भी है, सब मिलेगा. ठीक है. सो दैट हैज बीन डेवलप्ड वेल. अच्छी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है. वो अलग बात है, उससे पहले एडवेंट सबसे पहले आया था, स्काईमार्क बाद में. तो एडवेंट सेम इज द केस फॉर एडवेंट यू गॉट द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स है, राइट. एंड द रेंटल्स हैव गॉन एज हाई एज 200 रुपीज स्क्वायर फीट ऑन रिटेल. आप 115 रुपए में ऑफिस रेंट पे मिलता है, वहाँ पर 100 रुपये रेंटल है ऑफिस का इन एडवेंट. अच्छा. Just because the location, they've made it well, they've managed it well. Right, managed well. And आपकी सब proximity है, वहीं पे इनफैक्ट आपके मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे आपको अंडरपास है, there's a power taxi coming up, वो भी वहीं रुकेगी. प्लस नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो नई लाइन बना रहा है फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन, दैट ऑल्सो कमेंसेज एट एडवेंट. तो एवरीथिंग कमेंसेज एट 142. अच्छा. तो इसी वजह से वहाँ पर ग्रोथ. नमो भारत नहीं, जो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बना रही है ना, अभी तो आपको 51 से घूम के आना पड़ता है, राइट. फिर घूम के नहीं आना पड़ेगा, सीधा बोटेनिकल से आप एडवेंट आ सकते हो. और यही बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है. ये है नहीं अभी, तो देयर इज अ गैप टू इट, तो वो आ रही है, उसका भी जंक्शन 142. राइट. सर जैसे स्काईमार्क की हमने बात करी और एडवेंट की बात करी, दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हो गए एक तरह से. ये कॉम्पिटिशन को एनालाइज करना मार्केट में और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी चीज़ों को अलग करना, ये कैसे होता है?
देखिए, फर्स्ट थिंग, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड एंड स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर. आप जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे दूसरा कैसा कर रहा है, आप कैसे एनालाइज करोगे कि कोई चीज़ अच्छी है. बट अगेन कंपटीशन का प्राइमरली फायदा तो इन्वेस्टर को ही होता है. यू गेट द बेटर रेट्स, you get the better deals. But again, for developer perspective as well, it let them realize where it can be improved. या हमें फ्यूचर में और क्या करना चाहिए, या वेयर वी हैव डिफॉल्टेड. ठीक है. एंड जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड प्लस विद लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन इन दिस बेल्ट, तो कंपटीशन इज बाउंड टू कम. दे हैव बीन वेरी गुड बिल्डर्स हु हैव बीन डूइंग इट वेल. And they've been setting a new benchmarks for commercial properties. And competition is always good for the market. सर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये दोनों आज के टाइम में मस्ट है. AI भी आ चुका है, चैट GPT का यूज़ हो रहा है, आप करते हैं खुद यूज़? नहीं. सर नहीं, नॉट द AIs, बट ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी तो यू शुड बी अवेयर. जो बेसिक है वो तो पता होना चाहिए. हाँ, उतना ही है जो कि हमारे डेली यूज में है, बट नथिंग. देखो, रियल एस्टेट इज अ वेरी सिंपल इंडस्ट्री. साफ सुथरी है, सीधा प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना इज नथिंग टेक्निकल, राइट. और वो हम तो वी बीइंग इंडियंस हैव बीन डूइंग इट सिंस आवर एंसेस्टर्स. प्रॉपर्टी खरीदना बेचना तो सबको वो पता ही है कैसे. इट्स जस्ट दैट देयर आर टूल्स मे बी डिफरेंट एंड प्रॉब्ली AI और फॉर दैट मैटर टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन गेटिंग इनटू द डेप्थ कि कितनी नॉलेज गेन करने के लिए हेल्पफुल है. बाकी तो ज़मीन तो वही है. राइट. सर अगर आपसे पूछूं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तीनों मार्केट की करंट पोजीशन और आगे आने वाले 5 साल में आप क्या देखते हैं रियल एस्टेट? टचवुड, ऑल 3 मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेरी गुड दीस डेज. गुड़गांव शुरू से ही अच्छा करता रहा बिकॉज गुड़गांव में एयरपोर्ट का हमेशा बेनिफिट मिला है गुड़गांव का. एट दिल्ली बीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, center of all political activities in India, and all decision making has been happening from Delhi. So एक पूरा पॉलिटिकल सेटअप दिल्ली में तो रहता ही है, राइट. उसकी वजह से दिल्ली इज ऑलवेज हाइक्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली हैज़ अ लिमिटेड स्पेस नाउ, राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक लेवल तक ही इम्प्रूव कर सकते हो. उसके लिए जगह चाहिए आपको, सड़कें बनाने के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन चाहिए. वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, अब पॉसिबिलिटी नहीं है. सो अगर आप गुड़गांव भी देखोगे, इट हैज़ एक्सपैंडेड बियॉन्ड in fact Manesar, much beyond Manesar, which is too far from Gurgaon. जबकि नोएडा में अभी ये चीज़ नहीं हुई है. नोएडा में अभी भी बहुत ज़मीन बाकी है, स्पेशली ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे. अगर आप सेक्टर इनफैक्ट 128 या 140 के बियॉन्ड जाते हो, स्टिल देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ वेकेंट लैंड अवेलेबल. इट हैज़ बीन एक्वायर्ड, ऑल्दो अभी उस पर खेती हो रही है, बट स्टिल इट इज़ देयर फॉर डेवलपमेंट. सर इतना टाइम क्यों लग गया नोएडा को डेवलप होने में? बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, काफ़ी अच्छा लैंड है, यहाँ पे एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन गुड़गांव जैसे काफ़ी डेवलप कर चुका है. दिल्ली तो भर चुका है आज के टाइम में, अब लोग नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. देखिए, एवरीथिंग डज हैव अ पॉलिटिकल कनेक्शन. आज की तारीख में स्पेशली फ्रॉम लास्ट 2-10 years, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन सेम. सेंटर और स्टेट का इकट्ठे सेम होना बहुत मैटर करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. आप देखिएगा, जनरली सेंटर पे हमेशा कांग्रेस रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस रही है, राइट. तो इसी वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, करेक्ट, राइट. जबकि यूपी हमेशा डिफरेंट रहा है. देयर बीन लॉट ऑफ रीजनल पार्टीज, लेट इट बी आरजेडीज और बीएसपीज, वो थोड़ा सेंटर से डिफरेंट रही हैं. तो इसी वजह से उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. बट सिंस लास्ट 8 years दिस हैज़ बीन सेम. तो इसलिए यूपी की तरफ फोकस है. अदर देन द फैक्ट दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज वेरी एग्रेसिव फॉर डेवलपमेंट, तो वो डज मैटर. बट सेंटर स्टेट सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिए ना, जो एयरपोर्ट वाला ये शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट ऑल्दो वाज इन फैक्ट प्लान्ड बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट, बट स्टिल उसको इम्प्लीमेंटेशन में सेंटर ने बहुत रोल दिया है इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली फंड्स एंड प्लस लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल. तो वो बहुत बड़ा. इसलिए आज की तारीख में अगर आप देखोगे, ग्रोथ या स्कोप ऑफ ग्रोथ इज मोर इन नोएडा और एडजॉइनिंग नोएडा, बिकॉज यहाँ पर द फोकस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज मच हायर. प्लस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, स्पेशली जो ये यमुना एक्सप्रेसवे है. इतना बड़ा एक्सप्रेसवे आज का तो नहीं बना, बट इट हैज़ टेकन टाइम. बट आज की तारीख में यमुना एक्सप्रेसवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, प्लस कनेक्टिविटी,
Obviously, add-on is it's cherry on the cake is the airport. Right. उसकी वजह से इतना डेवलपमेंट हो रही है, आप देखो ना कितने रोज नई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. एवरी अदर डे यू आर गेटिंग समथिंग न्यू टू हियर अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे Yeah. और नोएडा. तो लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे Exactly. इन्वेस्ट कर भी रहे हैं अब. आप इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, जापानीज सिटीज बन रही हैं, आईटी पार्क बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना रही हैं, तो वो ऐसे ही तो नहीं बना रही. बिकॉज देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी एंड वेरी गुड लॉ एंड ऑर्डर. दैट्स व्हाई ये बेसिक चीज़ें ही चाहिए एक डेवलपमेंट लाने के लिए, लेट इट बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल. और सर गुड़गांव मार्केट का इस वक्त क्या स्टेटस है? Gurgaon is doing pretty good, especially residential is doing very well. Commercial का again the thumb rule remains. अगर developer is able to lease that area, any of the developers, I won't take the names, if they are able to lease those areas, depending obviously depending upon the demand of that thing, अगर वो leasing अच्छी होती है तो commercial is doing very well. Otherwise सारे commercial एक ही जैसे हैं. क्या नोएडा, क्या दिल्ली, क्या गुड़गांव, कुछ नहीं चलेगा अगर वो leasing अच्छी नहीं होगी. सर आपको क्या लगता है कि अगर आप कोई पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई आपसे सजेशन लेता है, आप क्या कहेंगे कि रेजिडेंशियल में पैसा लगाओ या कमर्शियल में लगाओ, किसमें? The first thing is objective क्या है. First question would be objective क्या है. अगर तो आपको रहना है तो obviously घर तो एक घर तो रखोगे ही आप, if not two. तो पहला तो घर होगा फर्स्ट प्रायोरिटी. दैट्स अ ह्यूमन थिंग, नेचर है वो, बट ऑब्वियस है. पहला तो घर लोगे. अगर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, देन कम्स द लैंड. बट लैंड में ये इश्यूज रहते हैं, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा उसको. ठीक है, एक वो अलग बात है, लैंड सस्ती नहीं है. अगर सस्ती भी है, अगर लेट्स से आप यमुना पे भी थोड़ी सस्ती लैंड मिल जाती है, बट उसको देखने कब जाओगे? हाँ. कुछ हो गया, क्या हो रहा है, कौन कब कब्जा कर ले आपको पता नहीं चलेगा. कब्जा तो नहीं होता इससे है. पहले क्यों होता था? पहले होता था, अब नहीं होता है. कब्जा नहीं होता, स्पेशली आप बिल्डर से अगर प्लॉट्स लेते हो उसमें तो वो कब्जे वाली प्रॉब्लम ही नहीं आती है. बट द पॉइंट इज स्टिल करोगे क्या, उसकी मेंटेनेंस तो जाएगी ना, उसको रख के रहना तो है नहीं. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. राइट. और वो सिर्फ रिटर्न तभी देगी जब वो चीज़ सेल आउट होगी. अगर सेल आउट नहीं हो रही तो इट्स अ ब्लॉक मनी, इट्स नॉट गिविंग एनी रिकरिंग रिटर्न्स. सो देन पीपल प्रेफर गोइंग टू अ कमर्शियल प्रॉपर्टी विच मे बी रिटेल और ऑफिसेस, वेयर इफ अ बिल्डर मैनेजेस इट, आप 99% ऑफ लोग कांट मैनेज इट देमसेल्व्स बिकॉज वो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ बिजनेसेस. कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो किराए पे नहीं चढ़ा पाएगा. Right. आपको घर भी किराए पे चढ़ाने के लिए ना ऑनलाइन डालना पड़ता है, 99 के रेंट पे करना. तो कमर्शियल तो आप चढ़ा ही नहीं पाओगे. बट ऑब्वियस, तो अगर इफ द बिल्डर टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी ऑफ द डेवलपर, थंब रूल इज इफ दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग इट, नथिंग लाइक इट. सर एट लास्ट ऑडियंस से आप क्या बोलना चाहेंगे करंट रियल एस्टेट मार्केट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, आपके कुछ सजेशंस? माई ओनली सजेशन वुड बी, रियल एस्टेट सब एक ही जैसा है. स्पेशली कमर्शियल में अगर आप जाना चाहते हो, प्लीज सी टू इट कि बिल्डर का विजन क्या है. अगर बिल्डर उसको चलाने का कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ बेच के आपको बाहर निकलना चाहता है, प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट. आप बैंक में रखो पैसा, एटलीस्ट इट इज सेफ एंड इट इज लिक्विड, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. राइट. बट अगर आपको कहीं रेंटल चलाने की एश्योरेंस नहीं है, या आपको नहीं दिखता है पर्सपेक्टिव बिल्डर चला पाएगा, प्लीज डोंट इन्वेस्ट. राइट. थैंक यू सो मच नवीन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी ढेर सारी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. इट्स थैंक यू प्लेजर. सर.